Hello everyone, myself Samarth Singh again in front of you people in order to bring out the next video in our beautiful series of economics. Acha, in the last of the class, we had discussed, obviously not in the very last class, but yes, in the previous of the class, I had discussed with you regarding the concept of GDP deflator. क्या डिस्कस किया है मैंने? I had discussed regarding the concept of GDP deflator. Just wait a second. Yes, I had discussed the concept of GDP deflator. In that concept of GDP deflator, I had told you that this GDP deflator is measuring the ratio between the nominal GDP divided by the real GDP divided by real GDP. ठीक, I guess in second or third lecture में probably you might be finding it. अच्छा. Then if I'm saying if I had to calculate real GDP, so I can say that it will be your nominal GDP, that is real GDP. Real GDP is equal to nominal GDP divided by your GDP deflator. Obviously, I can say that. And at that time, I also told you that this entire of the thing is majorly done. That is what is the difference between nominal GDP and real GDP. That is in nominal GDP, we are not taking into account the inflation. Take, but in real GDP, we are taking into account of inflation. So I thought of today that I will be discussing that how this parameter of GDP deflator is actually very much different from the other parameters that are also there in our economics study, and that is if I'm saying wholesale price index and consumer price index. Okay, so why I am saying that it is only real GDP, it is only your GDP deflator that is used in order to track what is there the deviation between the nominal GDP and real GDP, not other parameters that are wholesale price index and consumer price index. This is a very famous question in UPSC, and you will be finding it at ample number of places. So please be thoda sa focused on this. See, so before discussing that is why GDP deflator is a better, I will be saying that it is a better parameter than your wholesale price index as well as consumer price index. I need to analyze that what this wholesale price index and consumer price index is all about. When I am done with this wholesale price index and consumer price index, then I will be coming back to the same thing. So let us firstly discuss our discussion on what is this wholesale price index and consumer price index. See, if I'm guessing it from the word of WPI, I can say that W is your wholesale and PI is your price index. Okay. If I am considering from the CPI perspective, I will be saying consumer and price index. So wholesale price index and consumer price index. Obviously from the name also you can judge that it must be tracking, that is wholesale must be tracking the rates at the level of the wholesale. Okay, and this must be tracking the levels at the level of what, that is retail customers. जैसे आप और मैं, और ये क्या है होलसेल के लेवल पर, ये क्या है आपका और मेरे लेवल पे क्या क्या प्राइसेस है कंज्यूमर, चलो इसको ऐसे लिख लो. ठीक, नाउ सी, एक तो आपको पता ही होना चाहिए व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ये ना मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है. यूपीएससी में क्वेश्चंस आते रहते हैं इन दोनों ही इंडेक्सेस पे, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं एंड इट विल बी कमिंग आउट इन फ्यूचर एज वेल. नाउ सी, if I am discussing this entire of the thing, I will be saying that is number first of the parameter that is out there. What does it measure? ठीक, so what does it measure का अगर मैं बोलूं, so I will be saying that it is measuring what? It is measuring basket of wholesale goods. ये क्या है? basket of wholesale goods. ठीक, and it includes the price changes of goods and services consumed by the retails or household. तो अगर मैं बोलूंगा wholesale price index क्या measure करता है, that is basket of wholesale goods. I already told you, basket of wholesale goods.
ठीक, अगर मैं बात करता हूं रिटेल कस्टमर्स की, ठीक है, यहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेजरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स प्लस सर्विसेज at the level of households, at the level of households. Now see, when I am saying, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट क्या है, दैट इज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विसेज. सर्विसेज देखो यहाँ पे आई एम इंक्लूडिंग सर्विसेज, बट हियर क्या, देयर इज नो मेंशन ऑफ सर्विसेज, एंड दैट लेटर बिकेम्स अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑल्सो. क्यों? होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट इनकॉर्पोरेट सर्विसेज, डज नॉट इनकॉर्पोरेट सर्विसेज, and consumer price index incorporates services as well, incorporates services as well. और सर्विसेज को आप छोड़ नहीं सकते आज के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी में. व्हाई? बिकॉज अराउंड 56% ऑफ योर जीडीपी, ऑफ योर इंडियन जीडीपी, अब आप सबको पता है व्हाट इज जीडीपी, ठीक, 56% ऑफ इंडियन जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम द सर्विस सेक्टर. ठीक, सो व्हाट डज इट अकाउंट फॉर, इसमें क्या, WPI में सर्विसेज इज नॉट इंक्लूडेड, इट ओनली इंक्लूड सर्टेन बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स. वो क्या है बास्केट, अभी देखते हैं इन योर होलसेल प्राइस इंडेक्स. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, इट इज इंक्लूडिंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. कौन कौन से हैं वो मैं देखता हूं. नाउ सी, हु कैलकुलेट्स इट, ये भी बहुत क्या अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है, बहुत बार 70 टुच्चा मुच्चा एग्जाम में पूछा जाता है. एंड व्हेन आई एम सेइंग एनी टुच्चा मुच्चा एग्जाम, दैट इज नॉट UPSC. ठीक, so if I'm calculating, that is Office of Economic Advisor and Industrial at Policy. ठीक है, so इसको कौन रिलीज करता है, that is Wholesale Price Index is released by Office of Economic Advisor, Office of Economic Advisor, Economic Advisor. And here I am saying who releases this thing, ठीक है, that is CSO, that is Central Statistics Office. ठीक है, releases this CPI. Now see, मेन थिंग आती है कि यहां से यूपीएससी से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, कहां से, कि व्हाट आर, ये नहीं सॉरी, इस बार ये तो टाइप बता रहे कौन से हैं, तो इसके क्या, इसका होलसेल प्राइस इंडेक्स का कोई टाइप नहीं होता है. सीपीआई में समटाइम्स आई एम सेइंग दैट इज सीपीआई अर्बन, मतलब अर्बन, वो सॉरी, सबसे पहले कर लो सीपीआई रूरल, फिर कर लो सीपीआई अर्बन, कि अर्बन में कैसे प्राइसेस चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, एंड सीपीआई कंबाइंड, CPI combined, that we have majorly क्या taken. Now यूपीएससी में क्वेश्चन कहां से आया है इस पैरामीटर से, तो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा. ठीक, नाउ व्हाट आई एम सेइंग, ठीक, I am considering number first is your wholesale price index. अगर मैं wholesale price index को कंसीडर करता हूं, ठीक है, सो इसके 3 कंपोनेंट आते हैं. नंबर फर्स्ट इज योर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, नंबर फर्स्ट इज योर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक, जैसे केमिकल्स एंड एपरल्स एंड टेक्सटाइल्स, जैसे केमिकल्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा, केमिकल, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा. ठीक, देन इट इज इंक्लूडिंग प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स कैसे, जैसे फूड, नॉन फूड आइटम्स, फूड एंड नॉन फूड आइटम्स, and non-food items. And number third is your fuel and power. That is gasoline, petrol and all those kind of things. ठीक, और तीनों का परसेंटेज भी देख लीजिए, इसमें कुछ समझने का नहीं है. एक चीज याद रखना, ऑब्वियसली होलसेल में ज्यादातर आपके क्या होंगे, होलसेल में योर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर मोर. ठीक है, सो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर्ड गुड का वेटेज सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, हियर, ठीक है, दैट इज आई एम सेइंग यहाँ पे क्या 64.97. ठीक, देन आई एम सेइंग यहाँ पर उसके बाद वेटेज किसका है, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, दैट इज फूड एंड फ्यूल. ठीक है, फूड एंड नॉन फूड आइटम, सॉरी. ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, दैट इज फ्यूल एंड पावर. इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आया है एंड दैट आई विल बी डिस्कसिंग. सो होलसेल प्राइस इंडेक्स में 3 पैरामीटर्स व्हाट हैड बीन देयर, दैट इज योर क्या, नंबर फर्स्ट इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, नंबर सेकंड इज योर प्राइमरी प्रोडक्ट्स, एंड नंबर थर्ड इज फ्यूल एंड पावर. Similarly, on the other hand, if I am observing consumer price index, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, नंबर फर्स्ट आई एम सेइंग योर फूड एंड बेवरेजेस. अब इसमें देखो, यहां पर फूड एंड बेवरेजेस इज कमिंग क्या एट नंबर सेकंड लेवल, और इसका वेटेज कितना है 20.12. यहां पर कंज्यूमर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आई एम सेइंग इट विल बी व्हाट, इट विल बी फूड आइटम्स ओनली. ठीक, तो देखो, तो यहां पे क्या मैं बोलूंगा, आई विल बी सेइंग कि यहां पर फूड आइटम्स कितना है, फूड आइटम्स का वेटेज कितना है 49.71. सो फूड,
उसके बाद इट विल बी हेल्थ एंड एजुकेशन, सारे वही वाले पैरामीटर्स हैं, दैट इज कंसर्निंग व्हाट, दैट इज कंसर्निंग योर कंज्यूमर्स मोर. सो फर्स्ट इज योर फूड, उसके बाद आता है हेल्थ एंड एजुकेशन, नंबर थर्ड इज योर हाउसिंग, एंड सी लास्ट इज योर फ्यूल एंड लाइट, लास्ट इज योर फ्यूल एंड लाइट. इधर भी फ्यूल सबसे कम था, इधर भी फ्यूल कम सबसे कम है, बट होलसेल में इट वाज अकाउंटिंग फॉर अराउंड 14.91% एंड हियर इट इज क्या अराउंड आई एम सेइंग क्या 9.48. और इसके बाद एक और आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज क्लोथिंग एंड फुटवेयर, क्लोथिंग एंड फुटवेयर. ठीक, तो अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ऑब्जर्व करें, ठीक, सो व्हाट यू विल बी फाइंडिंग दैट इज यहाँ पे ऑल द पैरामीटर्स, ऑल द फैक्टर्स आर इंक्लूडेड, आर इंक्लूडिंग दोज ऑफ द थिंग्स दैट आर ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ होम ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द country. So food, health and education, housing, fuel and light and all those kind of things you have to incorporate. ठीक, अच्छा, दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा मैंने बोला यहाँ पे ये आपका क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स. ठीक, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई. नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, एक इसके ऊपर का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो तो डिस्कस कर ही लेते हैं. ठीक, उसके बाद वी विल बी कमिंग टू अवर क्या स्टार्टिंग का क्वेश्चन कि भैया वाई रियल जीडीपी इज नॉट कैलकुलेटेड थ्रू योर होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सीपीआई. ठीक, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. वेरी 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 फेमस क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, है ना. सो यू शुड बी कीपिंग अ ट्रैक ऑन दिस. नाउ सी, इफ आई एम सेइंग तो पहले क्या एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं यूपीएससी का, उसके बाद आई विल बी क्या स्विचिंग टू दैट थिंग. ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन करता हूं यूपीएससी का, सो व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना क्या वर्क स्पेस को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू मेक यू थिंग्स मोर विजिबल एट द सेम स्क्रीन. ठीक, देखो द वेटेज ऑफ 2020 यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है. बहुत आसान क्वेश्चन है, यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स. ठीक, देखो द वेटेज ऑफ फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन द होलसेल प्राइस इंडेक्स. अच्छा, देखो वैसे तो मैंने यहां पर आपको रेशियो बताया ही. यहां पे देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स का क्या है 20.12% एंड यहाँ पे क्या था फूड का व्हाट इज द वेटेज, दैट इज 49.71%. ठीक, वैसे तो आपको पता ही है कि भैया कि कंज्यूमर में ज्यादा होगा, बट इफ यू आर अप्लाइंग योर ब्रेन you can look into the thing that मैंने वो क्या बोला, consumer will be more concerned about those of the things that are intrinsically related to them. होलसेल लेवल पर आपका फूड प्राइसेस उतना इफेक्ट नहीं करता, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एट द कंज्यूमर लेवल योर फूड प्राइसेस आर इफेक्टिंग अ लॉट. ठीक, so weightage of the food in consumer price index is higher than that in the wholesale price index. This statement is obviously very correct. ठीक, WPI does not capture the changes in the prices of services which CPI does. Yeah, that thing I have also told you कि wholesale price index never takes into account the services, while CPI takes into account the services. ठीक, number third of the thing, that is Reserve Bank of India has now adopted WPI as its measure of inflation and to decide the changing key rates and policy. This is incorrect statement. ठीक है, हम लोग देखो अगर हमें क्या करना होता है, अगर हमें ये कैलकुलेट करना, अगर हमें जीडीपी रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी होती है, तो वी आर क्या मोर रिलाइंग ऑन व्हाट, वी आर मोर रिलाइंग ऑन योर this thing that is GDP deflator. बट अगर हमें इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना होता है, वी आर मोर रिलाइंग ऑन व्हाट, दैट इज सीपीआई. और कैसे, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है कैलकुलेशन ऑफ द सीपीआई. ठीक, करना कैसे है देखिए. वैसे फॉर एग्जांपल मंथ टू मंथ बेसिस का मैंने निकाली, जैसे मान लो कि दिस इज फॉर 2002, दिस इज डेट ऑफ 2003. कैसे कैलकुलेट करता है क्या. ठीक, इसका कुछ मान लो क्या सीपीआई आ गया एक्स, इसका मान लो क्या, अच्छा कौन से मंथ में, मंडे बोल रहा हूं क्या आपका, ये फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग जनवरी में. ठीक, ये हो गया फरवरी में मान लो क्या सीपीआई कितना था ए, इसका था बी. तो अगर मुझे ए मंथ का, जनवरी मंथ का मुझे इन्फ्लेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, y minus x upon x into 100 and whatever is the case I will be getting कि this much % of inflation I will be getting. ठीक, फरवरी मंथ का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, b minus a, ये CPI वैल्यूज हैं, b minus a upon a into 100. ठीक है, इस तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं अपना CPI कैलकुलेशन मैं अपना इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करता हूं थ्रू व्हाट, थ्रू
CPI. So it is not a WPI, it is rather CPI through which you are doing all the kind of क्या necessary calculation, and that is why your answer is 1 and 2 is correct. That is option A. आसान क्वेश्चन था. I told you regarding CPI, WPI, what is the difference, at what level they are majorly focusing. WPI is not taken into account the services, they are taking into account the services. ठीक है. फ्यूल का मैंने बताया, फ्यूल में दोनों में ही क्या फ्यूल आता है, एक में होलसेल में 20.12% है, इधर क्या फ्यूल का कैपेसिटी आपका कितना है, दैट इज 9.48% है. ठीक. इधर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेन थिंग्स आर मेजरली क्या कंसर्न एट होलसेल लेवल, इधर क्या है आपका रिटेल लेवल, कंज्यूमर लेवल पे इंक्लूड होता है. ठीक. अच्छा. सो देख लेते एक बार, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है कि रियल जीडीपी में वाई वी आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ठीक है. सो सिंस द जीडीपी डिफ्लेटर क्या कवर्स एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. ठीक है. जीडीपी डिफ्लेटर अगर आप यूज कर रहे हैं, यू आर टेकिंग इनटू और क्या एवरीथिंग नियरली. ठीक है. दैट इज आउट देयर. बट इफ यू आर यूजिंग ओनली सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, तो आपके पास फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं कि आप बस यही चीजें यूज कर सकते हैं, सिर्फ यही चीजें यूज कर सकते हैं. बट जीडीपी कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड इनटू ओनली दीज पैरामीटर्स. सो नंबर फर्स्ट फैक्टर बिकम्स दिस, दैट इज इट इनकॉर्पोरेट्स इनटू ऑल द काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक. एज अगेंस्ट द लिमिटेड कमोडिटी बास्केट फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. मैंने बता दिया कि उनका बास्केट फिक्स है, जीडीपी डिफ्लेटर में कोई फिक्स बास्केट नहीं है. ठीक. इट इज कवरिंग एवरीथिंग अंडर द सन. ठीक. देन सीपीआई इज नॉट प्रिफर्ड बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी. ठीक है. आर नॉट कंज्यूम. ठीक है. तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर नॉट कंज्यूम बाय द रिटेल कंज्यूमर. बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं. ठीक है. जो ये नहीं करता क्या आपका for example, I am saying क्या consultancy services in a country that is not directly related to the consumer, but that will be contributing to what, to your ultimate GDP. ठीक है. ठीक. तो इन सब चीजों के लिए वजह से वो consultancy services will not be accounting in CPI, but it will be contributing to the GDP, so it will be covered in your GDP deflator and not in CPI. ठीक. It assigns a fixed portion of the goods in the index instead of dynamic weightage. उसने क्या बोला कि भैया GDP deflator बहुत डायनेमिक है, it will change. ठीक. बट आपने क्या किया, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सीपीआई में यू हैव गिवन द फिक्स्ड वेटेज कि भैया फ्यूल का हमें क्या 20% करना है, इसका इतना % करना है. सो यू हैव फिक्स्ड, इट इज नॉट डायनेमिक. हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्यूल बिकम्स इवन मोर प्रोमिनेंट. ठीक है. बट यू हैव गिवन द वेटेज फिक्स्ड एट 20. ठीक. अच्छा. ठीक. दूसरा मैंने क्या बताया, 20 इन द केस ऑफ दिस, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड यहाँ पे क्या कितना अप्रॉक्स 9.48 के आसपास. ठीक. अच्छा. ठीक. देन इंपोर्टेड कंजम्पशंस आर आल्सो नॉट अकाउंटेड इनटू सीपीआई. सीपीआई में आप इंपोर्ट्स इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं. ठीक. अगला देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्यों नहीं प्रेफर करते, बिकॉज सर्विसेज इन्फ्लेशन इज नॉट कंसीडर्ड. मैंने बताया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज इज नॉट अकाउंटेड. होलसेल प्राइस इंडेक्स कंसीडर्स इंटरमीडिएट होलसेल प्राइसेस एंड नॉट द फाइनल मार्केट प्राइसेस. ठीक. देयर माइट बी द केस दैट केस होलसेल से माल उठाकर क्या फाइनल प्रोडक्ट बना दे. ठीक है. तो ये क्या बोलता है, इट कंसीडर इंटरमीडिएट होलसेल प्राइसेस एंड नॉट द फाइनल मार्केट प्राइसेस. मार्केट में जाके क्या प्राइस हो रहा है वो हमें नहीं पता. वी आर नॉट जस्ट नोइंग दिस थिंग की फॉर एग्जाम्पल रामू ने क्या होलसेल से खरीदा 100 रुपए में. ठीक. इट हैज सोल्ड टू शामू इन दिस एंटायर ऑफ द मार्केट एट 200 रुपीज. तो हमें इससे मतलब है, हमें इंटरमीडिएट वाले से मतलब नहीं है. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट. ठीक. So that was your class. I told you about GDP deflator, why GDP deflator is better than your CPI and WPI, how CPI and WPI are different, what are the differences, ठीक. and what is a famous question that is out there. ठीक. यूपीएससी का एक क्वेश्चन करवाया आपको. ठीक है. तो ये सब चीजें याद रखना. आज की क्लास में इतना ही करेंगे. एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट टू क्या follow me, you can follow me at this telegram group. This is my telegram group. You can take a screenshot of this and you can obviously follow me. ठीक. सो आज की क्लास के लिए इतना ही. ठीक है. रेस्ट वी विल डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास. ठीक. और जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूं, कैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए. वाई? बिकॉज यूपीएससी इज नॉट अ गेम ऑफ IQ, इट इज अ गेम ऑफ EQ. चलो बाय बाय बच्चा. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.